السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ، جس کا ترجمہ و تفسیر پچھلے چند ماہ سے ہم تمام لوگوں نے بغور سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے کہ اللہ سے دعا ہے کہ جو ترجمہ و تفسیر ہم سے گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر یا یہ درس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلا مقصد کہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور اس کے دیگر مقاصد میں سے یہ ہے کہ چونکہ یہ عربی زبان کے اندر ہے اور اتفاق سے ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، تو یقینی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کلام کے اندر کون کون سی باتیں، کون کون سے احکامات اور کون کون سے مسائل بیان کیے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے بعد یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ ترتیب میں یاد رکھیں، ایک ترتیب سلسلہ وار طریقہ جو ہے، قرآن جو پرنٹ ہوا ہے ایک پارے سے لے کر 20ویں پارے تک، اس میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ اور تیسری سورت سورہ آل عمران۔ ایک ترتیب ہے پرنٹنگ کے اعتبار سے، اور ایک ترتیب ہوتا ہے نزول کے اعتبار سے۔ یعنی جو ترتیب ہم ابھی دیکھ رہے ہیں قرآن کو کتابی شکل میں، یہ ترتیب نزول کا ترتیب نہیں ہے۔ اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہے، یہ پہلی قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن وہ آیت کہاں پر ہے؟ 30ویں پارے میں۔ تو یہ لکھاوٹ کہہ سکتے ہیں، کتابت کہہ سکتے ہیں، پرنٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم ابھی 3 نمبر کی سورت میں، جس کا نام ہے سورہ آل عمران، یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیں کہ سورت کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یہ گزر چکی ہے پہلی بار، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں، یا تو السلام وہ مکی صورت ہے یا تو وہ مدنی صورت ہے۔ 2 ہی صورت ہوتی ہے، یا تو مکی ہے تو مدنی۔ سوال یہ ہے کہ مکی صورت کسے کہتے ہیں اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، یا جو قرآن میرے پاس موجود ہے، نسخہ موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس نسخے میں جیسے بسم اللہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ملا کر لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بسم اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب بسم اللہ کے اوپر دیکھیے کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے سورۃ آل عمران، یعنی یہ سورت ہم شروع کرنے والے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد، وہ سورہ آل عمران ہے۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے، اور اگر مکی صورت رہے گی تو مکیہ لکھا رہتا ہے۔ تو کبھی آپ دوبارہ تلاوت کریں، اس پر غور کریں، ایک صورت دوسری صورت پہ جائے، تمام صورتوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اب اس میں کتنی آیات ہیں؟ یہ بھی اس میں لکھا ہے تو وہ میتا آیت و عشرون، اس میں 200 آیات ہیں، 200 آیت والی یہ صورت ہے۔ مکی صورت اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ مکی صورت کی تعریف یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے
जो सूरत नाजिल हुई है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ कर मदीना नहीं गए थे, तो हिजरत करने से पहले जो सूरत नाजिल हुई है उसको कहते हैं मक्की सूरत। हिजरत करने के बाद जो सूरत नाजिल हुई है उसको कहते हैं मदनी सूरत, चाहे वो सूरत मक्का ही में क्यों नहीं नाजिल हो, क्योंकि 10 हिजरी में मक्का फतह हो गया, सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए थे, मदीना से कहाँ चले आए, मक्का आ गए, क्योंकि मक्का फतह हो गया। तो हिजरत के बाद घर के मक्का ही में क्यों नहीं नाजिल हुई, लेकिन वो मदनी सूरत। ये फॉर्मूला याद रखें, हिजरत से पहले जो सूरत नाजिल हुई है वो मक्की है, हिजरत करने के बाद जो सूरत नाजिल हुई है उसको मदनी सूरत है। इस सूरत के अंदर शुरू के 83 आयत में 83 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अहकाम मसाइल को बयान किया, खुसूस एक वक़्त के बारे में बयान किया जो नजरान से आया होता और ईसाइयों का वक़्त था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आया होता और उसने अपने ईसाई मजहब के बारे में, उसके अकीदे के बारे में बहुत कुछ सवाल जवाब, जिसको कहते हैं तक को बहस क्या आए थे, यहाँ तक कि मुबायला की भी दावत दी गई। आयते मुबायला इसी में जो आगे चल के आएगा इंशाअल्लाह। तो ये इसका मुख्तसर बैकग्राउंड है इस पूरे आले इमरान की। ये मदनी सूरत है, 200 आयत है इसके अंदर। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ शुरू में बयान किया वो अकीदा तौहीद के ताल्लुक से है, और ये बहुत अहम चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद के बारे में बारहा मुसलसल लगातार बयान करता है। क्योंकि आप याद रखिए इस बात कि अगर हमारी ईमान में तौहीद नहीं रहा, यानी ईमान खालिस नहीं रहा, तौहीद खालिस नहीं रहा, तो याद रखिए कि हमारी निजात मुमकिन नहीं। क्योंकि अगर आप दुनिया पे नज़र डालेंगे, खासकर आज के ज़माने में, जिस ज़माने में हमारा जिंदा है और सांसें ले रहे हैं, तो हम एक कॉम्प्रोमाइज दौर में जी रहे हैं। हर जगह समझौता कर रहे हैं, हम समझौता करने के मूड में रहते हैं। चलो क्या हुआ, ये भी तो ठीक ही, वो भी ठीक ही है, हर तरह क्या कॉम्प्रोमाइज ही चल रहा है। याद रखिए कि तौहीद में कभी भी समझौता नहीं है। अगर समझौता करना होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो याद होना चाहिए कि जब मक्का के अंदर पहले तो छुप छुपा कर दावत तबलीग का काम होता है, बाद में हजरत उमर फारूकी ने कहा कि नहीं होगा तो अब अलल ऐलान दावत का काम किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उनका ये मशवरा था, और भी दीगर सहाबा का। और जब अलल ऐलान हुआ तो उसी खाने काबा के इहाते में हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि मर चुके, वो जिंदा नहीं बचे, इतना उनको मारा गया। हालांकि अबू बकर सिद्दीक उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े थे और थोड़े ज़ईफ़ हुए, उस वक्त को मुसलमान थे, उनको इतना मारा गया। बहरहाल तो जब अलल ऐलान मक्का के अंदर दावत तबलीग का काम होने लगा, मक्का वालों को ये बतलाने लगे, सहाबा की जमात, जो भी गिने सहाबा थे, अम्मार बिन यासिर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, बड़े गिने लोग थे। तो चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बड़ा ऊंचा खानदान था, बड़ा नामवर खानदान था, और आपके जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, ये हज़रत अली के वालिद हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अब्बू हैं। तो चूँकि बाप का साया भी नहीं था, दादा का साया भी नहीं था, अबू तालिब ने बड़ी मोहब्बत से आपकी परवरिश की और आपकी देखभाल की। तो मक्का वाले डरते थे कोई एक्शन लेने से पहले। हालांकि अबू सुफियान मक्का के सरदार थे उस वक्त, बाद में वो मुसलमान हो गए फतेह मक्का के बाद। अबू सुफियान ही के बेटे का नाम है अमीर मुआविया, जो बहुत यूनिक उन्होंने हुकूमत की है। 20 साल खिलाफत की उनके रही, खलीफा रहे 20 साल तक, और 20 साल तक गवर्नर थे, जिनको तारीख की किताबों में अमीर मुआविया को सेकंड उमर फारूक कहा जाता है। बहुत सख्त थे, अगर किसी को ताक देते तो समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे दीन के मामला में, उसे कोई सहाबा नहीं करते, लेकिन वो सख्त मिजाज थे। तो मक्का वाले अबू तालिब के पास चले गए और कहा कि देखो, समझाओ अपने भतीजे को, क्या कर रहा है वो, हमारे माबूदों को गलत सलत कह रहा है, छुटला रहा है, एक अल्लाह की दावत दे रहा है, उसको समझाओ, कहीं ऐसा ना कि उसके कुछ खतरा हो जाए। क्योंकि अबू तालिब ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, उन्होंने बुलाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि क्या इधर चीज़ों में पड़े हुए हो, काम धाम करो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह एक है, ये सब माबूदान बातिला नहीं है, ये बुद्ध है, ये मूर्तियाँ हैं, अल्लाह जो है दिखाई नहीं देता, ये सब क्या बेहुदा बात करते रहते हैं।
मक्का वाले आए थे, तो मेरा चेहरा देखकर तुमको कुछ नहीं बोला, हम तो बूढ़े चचा पे तो रहम खाओ, उसकी इज्जत को देखो, छोड़ दो ये सब चीज। तो अल्लाह का कुछ समझौता कर लेते। चलो चचा की बदनामी हो रही है बार बार, बाप का साया भी मेरे ऊपर नहीं है, खानदान के लोग हैं हमारे, ऊंचे मर्तबे वाले हैं, समाज और माशरे के अंदर इनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया। आपने क्या कहा कि अगर मक्का वालों ने एक ऑफर भी दिया था मुताबिक को, उससे कहो मोहम्मद से कि अगर रुपया पैसा दौलत चाहता है तो इतनी दौलत दे देंगे कि उसके पुश्ते कई पुश्ते खाती रह जाएंगे, और मक्का के अंदर जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उसी से निकाह करा दिया जाएगा मोहम्मद का। मुताबिक से कहा तुम्हारे लिए ऑफर भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे एक हाथ में चांद ला के दे दे और एक हाथ में सूरज ला के दे, तब भी मैं अल्लाह के दिन से नहीं कर। जवाब था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझौता नहीं किया, आपने कर सकते थे, आपकी जान बच जाती, आपके सहाबा की जान बच जाती, परेशानियां नहीं होती, आसानियां हो जाती, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इतना ज्यादा ऑफर हुआ था पैसे की, दौलत की, आपने इनकार कर दिया, टुकड़ा दिया। तो ये चीजें आप याद रखें कि इस सूरह आले इमरान की शुरुआती जो आयत हैं ये अकीदे तौहीद के ऊपर डिपेंड है, मुनहसिर है, इसको बयान किया गया है। इसमें समझौते की कोई कड़ी या कोई घड़ी नजर नहीं आती। हालांकि हम जानते हैं, हमने तारीख की किताबों में, अहादीस की किताबों में पढ़ा है कि सहाबा ने जो कुर्बानियां दी हैं जान और माल की, वो शायद कुर्बानियां हम ना दे सकें। इसी रमजान में जंग बदर लड़ी गई, आपको मालूम होना चाहिए। अजीब व गरीब मसला आता है हमारे पास, तो कभी कभी मिजाज चला जाता है। इमाम साहब बहुत हार्ड काम है, रोजा नहीं रखता, बहुत मेहनत वाला काम है। आता है मसला रखना चाहते हैं, लेकिन रोजी रोटी का मसला है, बाल बच्चे हैं, काम बहुत सख्त है, मेहनत वाला काम है, रोजा नहीं रख पाते। आप सोचिए को सहाबा नए नए मुसलमान हुए, कोई पुराने मुसलमान नहीं, हम लोगों की तो आदत है 20 साल से रोजा रखने की। एक गैर मुस्लिम मुसलमान बन जाए और अगले साल से रोजा रखना पड़ जाए, तो उसको जो परेशानी होगी वो हम लोगों को नहीं होगी। तो सहाबा नए नए मुसलमान थे और रोजा रख कर जंग बदर लड़ा, रोजे की हालत में वो कह सकते थे अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के नबी का तलवारें हैं, घोड़े हैं, तीरंदाज हैं, जान का तो पूरा ही खतरा, जान भी जाएगी गई। बहुत सहाबा करम शहीद हुए बदर में, हुए कि नहीं हुए। उनको ना कहना चाहिए कि अल्लाह के रसूल कैसे रोजा रखी, तो ये रोजा छोड़ देते, बाद में पूरा कर लेते रमजान के बाद, नहीं कहा साहब ने। तो हम तो सहाबा हमारे असल आइडिया है कि रोजे की हालत में उन्होंने जिहाद किया, कुफार मुशरिकीन से लड़ाइयाँ लड़ी। इस सारी चीजें जानने के बावजूद आज मुसलमान नौजवान कहता है कि बहुत हार्ड काम है, हम रोजा नहीं रख पाएंगे, बड़ी गर्मी पड़ेगी। सोचिए, अंदाजा लगाए कि क्या इस सवाल में कोई लॉजिक नजर आ रहा है आपको? हमारे असलाफ कौन कैसे थे कि रमजान मुबारक के अंदर सन 2 हिजरी में जंग बदर लड़ी हुई और रोजे की हालत लड़ा हुई। वो ईमान था उनके अंदर, नए नए मुसलमान थे, बुत परस्ती को छोड़ कर आए थे, उतना अगर डगर भी जाते, अगर इधर चले भी जाते तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी नए नए मुसलमान हैं, हम तो पुराने मुसलमान, हमको सब कुछ पता है। तो अल्लाह ताला ने शुरू के आयत में अपनी अकीदा तौहीद के बारे में इसलिए बयान किया कि तौहीद में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दीगर चीजों में हम थोड़ा बहुत समझौता कर सकते हैं जो शरीयत में टकरा नहीं रही। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम मुसलमान होने के बाद हम सिर्फ समझौते के मूड में रहते हैं, ये भी कर सकते हैं चलो ना भी करें, वो भी कर सकते चलो ना भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम बदल नहीं सकता, ये क़यामत की सुबह तक है। इसका हुक्म आज से 1000 साल पहले जो मुसलमान रहते थे उनके लिए उतना ही था जितना आज हम लोग हैं, और आज से इंशाअल्लाह 100 साल पहले या 1000 साल बाद आज से जो हमारे बाद जो नस्लें होंगी उनके लिए भी वही हुक्म होगा जो आज हम लोगों के हैं। कुछ बदलेगा नहीं, कुछ घटेगा नहीं, कुछ बढ़ेगा नहीं, कुछ हल्का नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा। इसीलिए याद रखें कि जो बेसिक चीज है घर बनाने के लिए जो पिलर हम बनाते हैं, तो बुनियाद को जितना हम तवज्जो देते ताकि घर बनाने में बुनियाद, छत को, दीवार को कोई क्रैक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बुनियाद पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमारा बेस और बुनियाद अकीदा तौहीद है। इसको अगर हमने मजबूत कर लिया तो याद रखें कि बाद के आने वाले मराहिल और मसाइल या मुश्किलात हमारी उस बुनियाद को हिला नहीं सकते। सहाबा ने अपनी बुनियाद को मजबूत कर दिया, यही वजह थी कि सहाबा को हिला नहीं सका, उनकी बुनियाद ही मजबूत थी।
अल्लाह ताला ने पहली आयत में कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, हामीम, यासीन, इस तरह की जितनी भी कुरान मजीद में सूरत के शुरुआत में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इन सब अल्फाज को कहते हैं हुरूफ मुक़त्तियात। इनको हुरूफ मुक़त्तियात कहते हैं, जिसका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो पूछिए आपसे कि अलिफ लाम मीम का माना क्या होता है, इसका जवाब क्या देंगे? तो इसका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम के ताल्लुक जो हदीस बयान की है कि कुरान के पढ़ने पर जो सवाब का जिक्र हुआ है, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि एक कुरान मजीद की तिलावत के बहुत सवाब है, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां है। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। तो अलिफ लाम मीम के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये हदीस आती है जो बतलाने के लिए कि अलिफ एक लफ्ज है, हरफ है, लाम दूसरा हरफ है और मीम तीसरा हरफ है। एक हरफ पे 10 नेकी, तो अलिफ लाम मीम पे कितना नेकी हो गया? 30 नेकी हो गया। माना तफसीर मफ़हूम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यासीन, तो यासीन पढ़ते हैं, यासीन का माना क्या होगा? अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उस हिसाब से किसी का नाम यासीन, उसका माना क्या होगा? सोचिए कि दीनी इल्म कितनी ज़रूरत है, ज़रूरी है कि हम क्यों दीनदार बने, क्यों दीन का इल्म सीखें। हो सकता है किसी भाई ने, पहले के लोगों ने यासीन सूरह के नाम पे किसी का नाम यासीन रख दिया। यासीन का माना क्या है? सवाल ये, अब अगर कोई इमाम से पूछ ले कि आप बताइए, आप तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हुरूफ मुक़त्तियात है, इसका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो एक बेमाना नाम रख दिया जिसे कोई माना ही नहीं है, और अगर कोई माना कर रहा है तो मुझे झूठा है। समझ लीजिए, हामीम, किसी का नाम पड़ गया हामीम, अब किसी ने उसका माना ट्रांसलेट कर दिया, इसका माना ये होगा, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था। अब एक यासीन अगर दूसरा उर्दू के अंदर आता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर किसी का नाम यासीन है तो ये सूरह यासीन की बुनियाद पर रखा गया। हो सकता है कि नहीं उर्दू के अंदर या हिंदी में कोई लफ्ज़ आ रहा है यासीन बोलकर और उसका माना है, तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब को नहीं मालूम। तो अलिफ लाम मीम जो है ये हुरूफ मुक़त्तियात, जिसके माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उसके बाद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, ये है तौहीद। अल्लाह वो है, ला इलाहा कि नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ मगर वही, वही मुराद अल्लाह। अल्लाह अगर लफ्ज़ यहाँ से हट भी जाता तो ला इलाहा इल्ला हुआ का माना भी सेम है, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वो। लेकिन अल्लाह ने हुआ ज़मीर के लिए जाहिर इस्तेमाल भी कर दिया, अल्लाह भी लफ्ज़ लगा दिया कि अल्लाह वो ज़ात है, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद बरहक इल्ला हुआ मगर अल्लाह। अल हय्युल क़य्यूम, ये दो सिफात है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला के बहुत सारी सिफात हैं, जैसे कह सकते हैं कि 99 नाम है, सब नाम सिफाती, एक नाम तो अल्लाह है, बाकी सब सिफाती नाम है। जैसे इंसानों के अंदर होता है कि कोई आदमी है और वो डॉक्टर है, कहते हैं ना फला डॉक्टर, डॉक्टर उसकी सिफात है। कोई वकील है, कोई मास्टर है, कोई दीगर चीज़ों में है, कोई मौलाना है, तो फला मौलाना, तो मौलाना उसकी सिफात है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी दो सिफात का जिक्र किया, एक सिफात अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्य, और एक सिफात अल क़य्यूम। हय्य का माना होता है जो हमेशा हमें जिंदा रहेगा, जिसको मौत नहीं है, इसको हय्य कहते हैं। और ये बात गुजर चुकी है कि अल्लाह के ज़ात में ये सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। अब यहाँ पे एक बहुत गंभीर मसला जो है जिसको मैं बयान करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ पे जो सिफत बयान की गई, पहले हय्य और क़य्यूम का माना समझ लें। हय्य कहते हैं कि जो हमेशा हमें जिंदा रहेगा, यानी क़यामत कायम होगी तो हर चीज फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह की। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सूरह रहमान में है ना कि हर चीज फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका, और जो बाकी रहेगी, बका यबकी मतलब बाकी रहेगी, वजहु रब्बिका, फिर रब का चेहरा बाकी रहेगा, जो ज़ुल जलाल वल इकराम है। तो अल्लाह हय्य है, यहाँ पर बयान किया गया कि अल्लाह हय्य है जिसे मौत नहीं आती। क़य्यूम जो दुनिया को पकड़े हुआ है, थामे हुआ है। कायम दुनिया जो है तो ये क़य्यूम है, उसी से कायम आता है उर्दू में। तो दुनिया को कायम कौन किए हुआ है, यानी पकड़ के कौन रखे, जो दुनिया गिर नहीं रही है, तहस नहस नहीं हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन थामने वाला है, इसलिए उसको क़य्यूम कहा जाता है। हय्य अल्लाह की सिफत है। हय्य के सिफत में देखिए
कि अल्लाह है जिसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह के अलावा कोई और है जिसको मौत नहीं आएगी? है? कोई नहीं है। कुरान मजीद ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अल्लाह के अलावा अगर कोई है जो पैदा हुआ है, हालांकि अल्लाह पैदा करने वाला है, पैदा हुआ है, इसमें नहीं जाना। यह अकीदे की बिगाड़ जो अभी आयत आएगी, अगर अल्लाह के अलावा कोई और अगर है जो मरा नहीं है, मौत नहीं आई है, तब तो शिर्क हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की उलूहियत में, अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की अस्मा और सिफात में हम किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। तो हाई अल्लाह की सिफात है, सिफत है, कईम अल्लाह की सिफत है। इस ताल्लुक से आप खुद सोचिए कि माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि हाई का माना होता है कि वो ज़ात जिसे कभी मौत नहीं आई, यानी हाई कौन है? अल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो हम मुसलमान, बाद हमारे मुसलमान भाइयों का जो अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल नहीं किए, पर्दा किए, इसका हम क्या माना समझा भी बताइए। अगर हम समझ रहे कि ठीक इंतकाल नहीं किए हैं, तब तो शिर्क हो जाएगा, तब तो दो लोग हो जाएंगे जिनको मौत नहीं आएगी। एक अल्लाह हो गए नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुछ सोचिए, या जो उर्दू के जानकार हैं, तो उर्दू में एक चैप्टर आता है जिद, जिसको होता है जिद बनाना, उल्टा पता। जैसे दिन का उल्टा रात, जमीन का आसमान, लड़का का लड़की, तो जिंदगी का उल्टा क्या होता है? हाँ, मौत। तो पर्दा कैसे होती है? आप सोचिए, ये एजुकेशन की बात हो रही, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही। या तो एक इंसान जिंदा रह सकता है, या तो एक इंसान मर जाएगा, इसके बीच में अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया। ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, या किसी को नीचा दिखाना, या किसी को गलत साबित करना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये कि कुरान का सही इल्म आप तक पहुंचाना। ये कुरान है जिसको न जाने यहूद और नसारा के उलमा ने कितने तावील किए कि मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा कर दी जाए। एक क्या है कि जिहाद की सारी आयतों को निकाल दिया कुरान मजीद में, और एक नुस्खा मुसलमानों में प्ले स्टोर पर जो है उसको दे दिया कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वो मुसलमान जानते नहीं, तर्जुमा तफसीर पढ़ रहे हैं, उसको वही कुरान समझ रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसे कैसे आपको कितनी फेक आईडी मिलेंगे जो गलत मलत फतवे देकर रखे हुए। यही वजह है कि आदमी कहता है कि उलमा से आता है। बहुत से लोग सर्चिंग में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो यहूदी उसको हैंडल कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं कुछ, जवाब उनकी तरफ से आ रहा है, आपको चले के जवाब मिल गया। तो उलमा से रिश्ता मजबूत कीजिए, ना कि मोबाइल से। ये नुस्खा याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे हमारे भाई अकीदा रखते हैं कि नहीं, आपका इंतकाल नहीं। तो मेरे भाई, अगर इस चीज़ को हम मान लेते हैं आपके लिए सही है, तो एक बात याद रखिए, तो दो लोग हो जाएंगे जिनकी मौत नहीं है। अब इसको और देखिए मजीद तरीके सब समझिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या जिंदा है कि इंतकाल कर चुके हैं? आपको बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या इंतकाल कर जिंदा है? क्योंकि उनको जिंदा उठा लिया गया था दुनिया से, अल्लाह ने उठा लिया। सूरह निसा में पूरा जिक्र है उनके बारे में, सूरह मरियम के अंदर पूरे वाक़यात बयान कैसे अल्लाह ने उनको उठा लिया, यानी वो इंतकाल नहीं किया। लेकिन कुर्बे क़यामत में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दज्जाल का फितना होगा और याजूज माजूज के फितने होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहदी अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेगा दज्जाल के खात्मे के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और आने के बाद उनका भी इंतकाल होगा। वो भी मौत की आगोश में जाएंगे। वजह की है क्या है जाने की? नहीं जाएंगे तो शिर्क हो जाएगा। अगर उनका इंतकाल नहीं होगा तो फिर हाई का माना दो लोग हो जाएंगे, अब तो तीन लोग हो जाएंगे। एक अल्लाह ताला, एक नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरे ईसा अलैहिस्सलाम। तो फिर अल्लाह की वहदानियत कहाँ कायम है? बात समझ आ रही है? मेरा अकीदा है जाती तौर पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये बात आप मानते हैं? मैं नबी से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करता हूँ। बात समझिए बात को। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे नबी से मोहब्बत करो, तो मैं अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह ने कहा कुरान में, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी की इत्तिबा करो। ये हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह हुक्म दे रहा है ना हम लोगों को कि ऐ मुसलमानों, तुम चाहते हो कि मुझसे मोहब्बत करो, तुम ठीक है काम करो, मेरे नबी की इत्तिबा करो।
फत्तबिऊनी का लफ्ज आया है। इत्तिबा और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत मैंने जुबान से कह दिया कि मैं आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इत्तिबा की जब बात आ गई कि इमाम साहब दर्द देने आएंगे नहीं, भैया इमाम साहब हफ्ता में 2 दिन नहीं, महीने नहीं करेंगे, महीना में नहीं, इमाम साहब हफ्ता में 3 दिन कर दीजिए, चलिए 4 महीने कहेंगे नहीं, हम महीना में 1 दिन आएंगे। फिर ज्यादा गुस्सा आ गया तो 3 महीना में 1 दिन। इत्तिबा कहाँ हो? जुबान से तो हमने कह दिया कि हमको आप लोगों से बड़ी मोहब्बत है। तो नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये हुआ कि उनकी इत्तिबा करनी होगी, तभी मोहब्बत का सबूत मिलेगा। वरना जुबान से तो हर कोई मोहब्बत करता है किसी से, प्रैक्टिकल कहाँ है? तो ये याद रखें कि हाई के बारे में, क्योंकि ये अकायद का चैप्टर है, आप अकीदे की किताब अगर मुताला करते होंगे तो और डीपली बातें हैं हाई के बारे में। तो याद रखें कि दुनिया की हर चीज को फना होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला एक है, तन्हा है, अकेला है, उसकी जात में, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, कोई भी नहीं, कोई शरीक नहीं हो सकता। आप उसका अंदाजा लगा लीजिए कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ नहीं पता है, ठीक है। जबकि इस बारे में कुरान मजीद के अंदर बहुत एक आयत जो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी थी, वो याद होगा आपको, कि उमर फारूक को जब खबर मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो मोहब्बत में ऐसा कुछ नहीं कि उसको इनकार करने के मूड में, वो इतना मोहब्बत करते थे। हम लोग अपने मौजूद की मोहब्बत करते हैं, हम लोग ऑफिस में काम में है, यहाँ पे कोई खबर करें कि हाँ आपके अम्मी का इंतकाल हो गया, शौक हो जाएगा हमें, दुनिया ही पलट गई हमारी। उनको भी लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, खबर भी नहीं फारूक को, और वो है गुस्सा हो गए। इतनी बाबरकत शख्सियत इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन अभी चंद मिनट पहले हमारे दरमियान थे, उनके छत्र छाया में, उनके साये में रहकर हमने दीन को सीखा, अल्लाह को पहचाना। आज वो हमसे रुखसत हो गए तो उन्होंने तलवार निकाल दी, कहा कि कोई अगर कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उसकी गर्दन उड़ा दी। बात अबू बकर सिद्दीक तक गई और खबर मिली कि ऐसा मामला है। वो भी सदमे में थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल से सहाबा में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अबू बकर सिद्दीक थे। उनको भी सदमा था, लेकिन कितना उन्होंने संभाला अपने आप को कि उमर इस तरह की बात कर रहे हैं। और गए और मुसलमानों को जमा किया मस्जिद नबवी के अंदर, और आपने वहाँ खुतबा दिया कि नबी के वसल्लम का तरीका था कि आपको जब चीज़ के बारे में समझाना होता था तो मजमा उसी तरीके से बैठा लेते थे और खिताब करते थे, ये चीज़ें हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मन काना बिनकुम याबुदुल्लाह इन्नल्लाह हय्युन, तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हई है। मन काना याबुदु मोहम्मद बिल्कुल, और तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता है तो जान ले कि फइन्नका मय्युत, वो इंतकाल कर चुके, यमूत, फइन्नका यमूत, वो इंतकाल कर चुके। माता यमूतो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। माता यमूतो का माने क्या होता है? मरना, अरबी के अंदर। तो ये अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता है उसे कभी मौत नहीं आती। तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता है तो याद रखे कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। और तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता है, ये तरीका था समझाने का, अंदाज देखें कि मोहब्बत का माना यही होता है कि उसको खुदा बना ले। ये लफ्ज इस्तेमाल करते, मन कान याबुदु मुहम्मदन मिनकुम, तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, हालांकि कोई सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते थे, इत्तिबा करते थे, लेकिन समझाने का अंदाज देखे उनका कि अगर कोई मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि फइन्नका यमूत, उमर चुका। तो ये है कि तफसीर है कि है सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 3 के अंदर, नज़्ज़ला अलैका के किताब बिल हक़, कि वही अल्लाह जिसने आपके ऊपर कुरान यानी किताब को नाज़िल किया हक के साथ। यानी किताब क्या है? बरहक। तो किताब बरहक है, इसमें झूठ नहीं, किससे नहीं, कहानी नहीं, प्रेम नहीं, सब हक बात है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो तस्दीक करने वाली इससे पहले की किताबों की। कुरान से पहले कौन सी किताब नाज़िल हुई? तौरात है, इंजील है, ज़बूर है। ये तस्दीक करने वाली पहले की किताबों की। वो अनज़ल तौरात वल इंजील, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले तौरात को और इंजील को भी नाज़िल किया। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। फिर अल्लाह ने कहा मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, ये किताब के अंदर जो कुछ बयान किया गया था पहले की किताबों में, मिन क़ब्ल, उससे पहले जो किताबें थी वो भी लोगों के लिए हिदायत थी, तौरात और इंजील भी। ये तो बाद के उनके उलमा ने उनकी किताबों में तहरीफ कर दिया। बाद के उलमा ने, यहूद और नसारा के उलमा ने अपनी सहूलत के लिए उन किताबों को रद्द बदल कर दिया। अब वो असली और हकीकी शक्ल में मौजूद है। ईमान लाना है कि तौरात अल्लाह की किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, इंजील अल्लाह की किताब, आसमानी किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं करना। अमल सिर्फ किस पर होगा? कुरान मजीद के ऊपर होगा।
वो अनजल फुरकान, और अल्लाह ने फुरकान को नाज़िल किया। कुरान को यहाँ फुरकान कहा गया। फुरकान का माना हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, उसी से है फारूक। फारूक का माना यही होता है कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। तो अल्लाह ने कहा वो अनजल फुरकान, और अल्लाह ने फुरकान यानी कुरान को नाज़िल किया। कुरान का एक नाम फुरकान भी है, फुरकान भी एक कुरान मजीद क्या है। इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह, अल्लाह ने कहा कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह की आयत के साथ, कुफ्र किया यानी इनकार किया, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब और बदला लेने वाला है। यहाँ पर कफरू का लफ्ज़ मैंने इससे पहले भी कई मरतबा सूरह बकरा में ये लफ्ज़ कफरू गुजरा है, तो मैंने मुख्तसर तफसीर किया था कि आमतौर पर मुसलमान समझते हैं इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह, जो काफिर अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। अगर काफिर अल्लाह की आयत का, तो फिर इनकार का माना कहाँ है? इनकार का लफ्ज़ कहाँ से आया है? काफिर को अगर यहाँ कफर को काफिर हमने तर्जुमा कर दिया, तो इनकार का लफ्ज़ कहाँ गया? इसी तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको होश में रहेंगे कि हाँ वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे। इन्नल, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जो कफर कुफ्र किया, बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयत के साथ, जिन्होंने अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र किया, तो काफिर का तर्जुमा किससे करेंगे? बहुत सारे मुसलमान इसको काफिर का तर्जुमा करते हैं कि काफिर अल्लाह की आयत का इनकार किया। जब इनकार किए तो काफिर नहीं हो, काफिरों को इनकार किया, समझिए, ताकि हम बड़ी जिम्मा रहे, हमारे लिए आयत नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम कैसे अल्लाह की आयत का इनकार कर देंगे? किसी तरीके से आयत उठा के फेंक दे जाओ उन्हीं लोगों को, लोग तुम लोगों की उतरा, हम लोगों ने नहीं उतरा, हम तो मुसलमान हैं। इसका माना हुआ कि अगर मुसलमान भी अल्लाह की आयत का इनकार करें, समझ गए, क्या मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा? ऐसा है कहीं पर कि मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा? सवाल पैदा नहीं होता। रोजा खोरों के बारे में देखिए ना, वो मुसलमान जो रोजा नहीं रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में दिखाया गया, एक चोटी पर चढ़ाया जाए, जो भी पहाड़ की चोटी कहते हैं, तो अल्लाह रसूल ने कहा कि मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, बड़ी ऊंची है। तो उनसे कहा कि मोहम्मद आप चढ़े, आपकी आसानी की जाए। बड़ी चोटी पे चले गए, पहाड़ की ऊंचाई पे चले गए, उस तरफ देख रहे हैं कुछ लोगों के जबड़े चिरे गए हैं, और बच्ची है क्या उसको बोलते हैं कि जो होके जा रहे हैं, उसको इधर से उधर पार कर दिए जा रहे हैं, इधर इधर से हला कर इधर निकाल दिए जा रहे हैं, अपनी चीखें आ रही हैं। तो अल्लाह रसूल लोगों के पूछे, जो लोग ले गए थे, चाहे से मतलब फरिश्ते होंगे, तो किनकी अजाब, किनकी चीखें आ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की चीखें हैं जो जहन्नम वाले हैं। तो अल्लाह रसूल ने कहा, देखा कि एक दूसरे साइड में इधर से कुछ भाला वगैरह भोंका जा रहा है, कुछ इधर से किया जा रहा है, जबड़े चीर दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह रसूल ने कहा ये लोग कौन है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखते, ताकत के बावजूद रोजा नहीं रखते, ये वो लोग हैं। तो रोजा तो मुसलमानों पे फर्ज है, गैर मुस्लिम पे तो फर्ज नहीं है, काफिरों पर, किस पर फर्ज है? मुसलमानों के ऊपर। तो जो रोजा नहीं रखेंगे तो मुसलमान ना होंगे, मुसलमान ही है। जो रोजा नहीं रखेंगे तो मुसलमान ना हम कैसे होंगे? ये उनके बारे में हदीस है। तो बहुत से मुसलमान अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ तर्जुमा कर देते हैं कि जो काफिर अल्लाह का आयत का इनकार कर, नहीं, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान, उनके लिए लहुम अज़ाबुन शदीद, दर्दनाक अज़ाब। कभी गलत फहमी में ना रहे कि हम मुसलमान हैं, जन्नत के मुस्तहिक हैं, चाहे अमल करे चाहे ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे अल्लाह ने कहा अल्लाह अज़ीज़ुल इंतिकाम, अल्लाह ताला गालिब और इंतकाम यानी बदला लेने वाला है, बदला लेगा अल्लाह ताला। अगर हम ताकतवर है, जवान है, रोजा रखने की हैसियत है, ताकत है, नहीं रख रहे हैं, तो अल्लाह बदला लेगा। यहाँ बच जा सकते, वहां नहीं बचेंगे। उसके बाद आयत नंबर 5 में अल्लाह ने बयान किया इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, बेशक अल्लाह वो है जिस पर जमीन में और ना ही आसमान में कोई चीज मख्फी नहीं, कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह की जात वो है कि जिस पर कोई चीज छुपी नहीं, पोशीदा नहीं है, ना जमीन में और ना ही आसमान में, वला फिस समा, जमीन के अंदर यानी गहराई में कोई अगर गुनाह कर रहा है, रात के अंधेरे और तारीकी में कोई गुनाह कर रहा है, तो अल्लाह बिल्कुल रोशनी, सूरज की रोशनी की तरह देख रहा है, उससे भी ज्यादा हमारा जब अंधेरा है कि दुनिया नहीं देख पा रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला तो सीनों के भेद को जान रहा है कि हमारे सीने में क्या एक्टिविटी है, क्या चल रहा है, दिमाग में क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अल्लाह जानता है। उन्हें यही बात अल्लाह ने यहाँ बयान की, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, कि बेशक अल्लाह की जात वो है जिस पर जमीन व आसमान में कोई चीज मख्फी नहीं है, हर चीज को अल्लाह जानता है। एक रोजादार है कोई, तो सोच रहा है कि चलो घर में कोई है नहीं, कमरा बंद करके खा ले, ये आयत इसके लिए फिट आ जाएगी, अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है।
अब रोजेदार के बारे में एक सवाल आता है अक्सर कि किन चीज़ों से रोजा टूट जाता है, उसको भी मैं मुख्तसर बयान करता चलूँ। एक शेख है मौलाना किफायतुल्लाह सलामी साहब, मिरास के बारे में बहुत एक्सपर्ट है। तरीका कैसे तकसीम होगा, 4 भाई है, 3 बहन है, बाप का इंतकाल हो गया है, माँ है या माँ नहीं है बाप है, 3 भाई है, 2 चचा है, बड़े एक्सपर्ट आए कि वरासत कैसे तकसीम होती किताब सुन्नत की रोशनी में। उनसे ऑनलाइन किसी ने सवाल किए थे रमज़ान के महीने में कि रोज़ा जो है किन चीज़ों से टूट जाता है, क्या हम भूल चूक कर खा लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। उसने बहुत अच्छा सवाल किया, कलकत्ता ही पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जान खा लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अनजाने में गलती से वजू खाना में गए, वजू बनाए, पानी पीते चले गए, पेट भरे, पानी भरे, पेट क्या भर रहा है, तो पता चला कि हम तो रोज़ा है, तो भूल कर पी लिए, रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल चूक से खा पी लेने से अल्लाह ताला ने खिला दिया, अल्लाह ताला ने खिला दिया, लेकिन जानबूझकर खाने से रोजा टूट जाएगा। उन्होंने एक बात को ऐड कर दिया कि वाहन का हिस्सा भी खाने से रोजा टूट जाता है, उसमें ऐड कर दिया उन्होंने। अब वो खामोश हो गए। हालांकि जो लोग विरासत में कहते हैं कि अब्बा तो शादी कराए हैं, हम लोग शादी करा दिए, आपका इतना खर्चा किए हैं, अब कैसा हिस्सा, तो वो तो हक है ना बेटी का बाप की प्रॉपर्टी में, जैसे बेटे का तो सब बेटी का भी हक है। मान लीजिए छोटा सा घर है, एक ही आदमी का परिवार है और एक भाई एक बहनी है, तो उसको बेच कर देना होगा बेटी को। कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं ना, समझौता कर लेते हैं, बाजी देख लो एक ही घर है, कैसे हम ही मेरा परिवार नहीं रह पा रहा है, आपको कहाँ से दे, नहीं चलेगा, देना होगा उसको, देना ही होगा। उन्होंने ऐड कर दिया कि बहन के जो लोग हक खातर बैठे हुए हैं और रोजा रख रहे हैं, इत्तिकाफ कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, वो भी नहीं दिलाएगा। किसी का हक मार के हम अल्लाह को खुश करेंगे? तो ये हमारे माशरे में नहीं है कि बेटियों को हिस्सा देना है। बेटियों को फोन करके बोला जाता है कि भाई हिस्सा लग लीजिएगा, अब बेटियां फोन करके बोलते हैं कि भैया आप लीजिएगा, हिस्सा लगेगा तो कैसा लगेगा? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? लड़की अपने ससुराल जब फोन करते अपने भाइयों को कि अब्बा का तो ऊपर कट गया, पता चलेगा इंतकाल हो गया, हिस्सा लगना है, तो आप लोग लीजिएगा, तो लोग मिला जाएंगे। अरे ये जुमला तो हमको बोले थे, मेरा राइट है, आप क्यों बोलती हैं? हम आपको बोलेंगे आप लेंगे कि नहीं लेंगे, आप हमसे बोल रही हैं। इसीलिए अपनी बहनों को हक दें, बहनों के हक खा जाने से रोजा टूट जाए, याद रखें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया आयत नंबर 6 के अंदर, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, अल्लाह वो जात है जो माँ के पेट में शक्लों को फिरता है बनाते जैसा चाहता है। सोचे कि जो हमें ठहरता है औरत के पेट में, जो हम लोग भी तो अपने माँ के पेट में थे 9 महीने तक, तो हमारी शक्ल सूरत को वही बना रहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन के। जैसे पैदाइश 2 तरह की होती है, एक बहुत बच्चा सही सालिम पैदा होता है, एक बच्चा जो नाकिस पैदा होता है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, अजीब वो गरीब खिलकत होती है, तो वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। किसको कैसा शक्ल देना है, आज अपनी शक्ल को हम देख रहे हैं, 20 साल बाद अल्लाह पहले जानता था कि इस शक्ल के हम बड़े होंगे, जवानी में क्या शक्ल होगी, बुढ़ापे में कैसी शक्ल होगी, बचपन में क्या शक्ल होगी, ये सब अल्लाह माँ के पेट ही में बना रहा है। सोचे उसी का यहाँ पे जिक्र है, वो लदीसों की रुकुम, तस्वीर आते हैं उर्दू में, लग तस्वीर समझते ना, आदमी में कहते हैं सौ की रुकुम बनाना, वही वो जात है जो फिर अरहाम माँ के पेट में कई पैसा जैसे चाह रहा था तुम्हारी शक्लें बना रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। सब अल्लाह के ताल्लुक से हमारा अकीदा होना चाहिए। बहुत से लोग अपने चेहरे को लेकर नाराज रहते हैं कि हम उनकी तरह हैंडसम नहीं है, हमारे बाल उनकी तरह नहीं है, हमारी बुराई रंगत उनकी तरह नहीं है, हमारे नाक उनकी तरह नहीं है, हमारे स्टाइल उनकी तरह नहीं है। याद रखें, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक ना हमारी खूबसूरती जन्नत में ले जाएगी, ना हमारे अच्छी सेहत जन्नत में ले जाएगी, बल्कि जो अफ्रीका वगैरह में पैदा हो रहे हैं मुसलमान, वहाँ नेचुरली तौर पर ब्लैक यानी काला रंग के पैदा होते हैं, वो अगर मुत्तकी है तो अल्लाह को पसंद है। और हजतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा याद रखिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि इस्लाम ने कभी भी अमीर को गरीब पर, गोरे को काले पर फौकियत नहीं दी। अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। ये बात किसने कही? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नस्ली तौर पर क्या थे, अरबी थे, अरब नस्ल के थे, हम लोग अजम नस्ल के हैं। अरबी के अलावा जो होता है उसको अजमी कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि इस्लाम ने कभी किसी अरबी को अजमी के ऊपर, किसी अमीर को गरीब के ऊपर, किसी गोरे को काले के ऊपर फौकियत नहीं दी है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर शख्स वो है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह सबसे ज़्यादा उसको पसंद करता है जिसके नज़दीक तकवा ज़्यादा है। अगर अल्लाह के रसूल ये बात ना कहते तो आज अरब वाले सीना फुला कर रहते कि हम अरबी हैं, हमारे नबी
अरब नस्ल के थे, हम ही जन्नती हैं और हम ही मुसलमान हैं। आप हिंदी हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, नेपाल के हैं, आप मुसलमान नहीं। एक अरब नस्ल कह रहा है अपनी जुबान से, हम कह सकते हैं कि तुम लोग अच्छे हो, हम लोग खराब हैं? सोचे, इनकी लॉजिक को समझे कि हम नियामत में रहने वाले तो हम अच्छे हैं और उधर रहने तो खराब है? कोई कह पाएगा कि हम खराब है यहाँ के रहने वाले अभी अच्छे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम ने अरबी को अजमी के ऊपर फौक नहीं दिया। अगर कोई अजमी यानी हम लोग हैं और अच्छे मुसलमान हैं, माशाल्लाह सच्चे मुसलमान हैं, तौहीद परस्त है और हम तकवा वाले हैं, तो याद रखें कोई अगर अरबी नस्ल का मक्का का रहने वाला है और अगर बिदअती है तो उससे बेहतर नहीं। अल्लाह ने पता है यहाँ कि जैसे शक्ल सूरत चाहता है अल्लाह माँ के पेट में बनाता है, तो हम अपनी शक्ल सूरत को कभी अल्लाह से शिकायत ना करते, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है तो बेहतर होगा। आजकल जीव भी तब्दील हो रहा है, मर्द औरत बनने की ख्वाहिश में लगे हुए बन रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अल्लाह की तकलीफ से कि अल्लाह ने हमको मर्द बनाया, क्यों बना, हमको औरत बनना चाहिए। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि अल्लाह ने जो बनाया तो बेहतर बनाया। बल्कि आप अल्लाह के जीव को बदलने का मतलब ये कि अल्लाह की तकलीफ को बदल लें। आप मुकाबला करना चाहते हैं कि अल्लाह अगर लड़का बनाया है तो हम लड़की बना लेंगे अपने आप को, तो उनका ठिकाना जहन्नम। ऐसे लोगों को बाज आ जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्ला हुवा, फिर अल्लाह ने कहा नहीं है कोई माबूद मगर वही, अजीजुल हकीम, हुवल अजीजुल हकीम, जो गालिब और हिकमत वाला है। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 7 के बयान, बड़ी लंबी चौड़ी आयत है, हुवल लज़ी अनज़ला अलैका किताबा, वही वो जात है जिसने आपके ऊपर किताब को नाज़िल किया। मतलब कुरान को कहीं किताब भी कहा गया, कहीं फुरकान भी कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है। मिनहु आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, जिसमें आयतें मुहकमात मजबूत और ठोस आयतें और यही असल किताब है। व उखर मुतशाबिहातुन, और दूसरी मुतशाबि आयत है। दो चीजें देखिए, एक है मुहकम आयत होता है, एक है मुतशाबि आयत होता है। मुहकम आयत कहते हैं यानी मजबूत और ठोस अहकाम व मसाइल, कुरान के अंदर रोजे के क्या मसाइल है, नमाज के क्या मसाइल है। तो अल्लाह की किताब में एक होता है मुहकम आयत, जिसको कहते हैं अहकाम व मसाइल, पिछले उम्मतों के किस्से, याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या, कुर्बानी का जो है, जो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा सूरह यूसुफ उसके अंदर जिक्र है। तो जो पिछले नबियों के किस्से बयान किए गए इस कुरान मजीद के अंदर, अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं, उन सब को कहते हैं मुहकम आयत। एक होता है मुतशाबे आयत। मुतशाबे आयत कहते हैं वो चीज़ है जिनकी हकीकत को देखने से हम कासिर हैं। जैसे क़यामत कायम होगी, किसने देखा? कब्र के अंदर सवाल हो, कौन जानता है? फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए, किसने फरिश्तों को देखा? उसको मुतशाबे आयत कहते हैं। जो मुखालिफिन मुसलमानों के वो मुहकम आयत से हटकर मुतशाबे आयत पर फोकस करते हैं और उसी में उलझा देते हैं। पसंद क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह वही है जिसने तुम्हारी ऊपर किताब को नाज़िल किया और उसी में मुहकम आयत है। हुन्ना उम्मुल किताब, यही असल किताब है। उम्म मतलब होता है माँ, अरबी में उनके मतलब क्या होता है? माँ। इसे कहते हैं नबी की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ। जितनी भी नबी की बीवियां हैं वो हम लोगों की अम्मी है, माँ है ना। यहाँ पे कहा हुन्ना उम्मुल किताब, मुहकम जो आयत है, मजबूत और ठोस जो आयत है, यही असल कुरान है। यानी हमें फोकस करना है आकाम मसाइल पर, जो हमें करना है। कुरान किस लिए आया है? अमल करने के लिए आया है। तो इसमें क्या आकाम मसाइल बयान किए गए, रमजान के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, इसी तरीके से रोजे के ताल्लुक से या दीगर मसाइल के ताल्लुक से। मुतशाबिह आयत क्या है? जो कुरान में बयान किया गया है कि अगर मुत्तकी है, इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून, बेशक मुत्तकी साए वाले जन्नत में होंगे। किसने देखा साए वाला जन्नत? कोई देखा है? लेकिन हमारा अकीदा है कुरान में जिक्र है तो है, देखा हमने किसी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमने के बाद भाई अब इसी के पीछे लग जाते हैं। तो जो साया वाला जो जन्नत होगा, तो उसमें जो साया होगा वो नीम के गाछ का होगा कि बरगद का पेड़ का होगा? अच्छा, वो गाछ पर कौवा भी बैठता होगा कि कोयल बैठता होगा? बेकार की चीज में लगे हम लोग। समझ आ रही है? नहरें बह रही होंगी, तो नहरें क्या माइथन की तरह बहेगी जो हम लोग देखते हैं? कोई और तरीका है बहने का? तो ऊपर से बहेगी कि नीचे से उड़ के जाएगी? या ऑटोमेटिक हम सोचेंगे गिलास में भर के शहद मिल जाए? इस तरह की चीजों से लोग गुमराह हो गए। बहुत से मुसलमान कहने से उन्होंने मुहकम आयत को छोड़कर मुतशाबिह आयत के पीछे लग गए। अब मुतशाबिह आयत में लगेंगे तो जन्नत कैसी होगी? जन्नत तो किसके बनाया? अल्लाह। अल्लाह किसके बनाया? शैतान ऐसे रह जाता है। अल्लाह को कोई ना कोई तो पैदा किया, कभी तक भी अल्लाह भी आया, कैसी आया, कहाँ से आया है? आपका ज़हन उधर ले जाए। तो हमें मुहकम आयत पर फोकस करना, मतलब अमल करने पर। अल्लाह का जो वादा पर हक है उसको छोड़ दीजिए। जन्नत कैसी है, जन्नत में क्या चीज मिलेगा, ये हम लोगों का टेंशन नहीं है।
आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की वादा खिलाफी नहीं करता। हमें मुहक्कम आयत पर फोकस करना है कि अभी जिंदा है, अमल करने का वक्त है, बाद में निकल जाएगा वक्त। फौरन मुहक्कम आयत की तलाश करो भाई, रमजान के क्या मसाइल है कर लेते हैं, ज़कात के क्या मसाइल है उसके हिसाब से ज़कात निकाल देते हैं, निकाह के क्या मसाइल है, तलाक की क्या मसाइल है, कुर्बानी की क्या मसाइल है, वो आयतें तलाश कर करके किताब सुन्नत से उस पर अमल करना है। अल्लाह ने बयान किया फअम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, बेशक जिनके दिलों में कजी है। कजी कहते हैं दिलों में कीना कपट, भेदभाव, बुग़्ज़ अनाद जिनके दिलों में है, फयत्तबिऊना मा तशाबहा, तो वो मुतशाबिह आयत की इत्तिबा करते हैं, तो मुतशाबिह आयत के पीछे लगते हैं। मैंने बयान कर दिया कि मुतशाबिह आयत के पीछे कौन लोग लगते हैं, जिनके दिलों में कजी, और ना सिर्फ पीछे लगते हैं मिनहुत्तिका अलफितनता, बल्कि उसमें से फितने को तलाश करते हैं, फितना फैलाने के लिए तलाश करते हैं। अच्छा इमाम साहब बताइए कि आपकी इंतकाल हो रहा है 80 साल की उम्र में, तो आप जन्नत में जवान होते जाएंगे कि बच्चा होते जाएंगे? अजीब व गरीब सवाल दिन में चल रहा पूछ ले भाई। अल्लाह ताला जानता है कि हमें जवान करके जन्नत में ले जाएगा कि बुढ़ापे में ले जाएगा, लेकिन ये कि नेमतें अच्छी से फायदा उठाएंगे अच्छी ताकत में। अब इस तरह के सवाल और अहकाम मसाइल पर कोई बहस नहीं हो रही है कि हम अहकाम मसाइल पर अमल नहीं करते हैं, हम सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं। तो मुतशाबिह आयात की वजह से बहुत से नौजवान गुमराह होते हैं, क्योंकि असल चीज को छोड़कर नकल चीज के पीछे पड़ते हैं। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, तो क्या हम में से किसी का अकीदा है कि अल्लाह के अहकाम पे चलेंगे तो जन्नत हमको नहीं मिलेगी? अकीदा है तभी ना अमल कर रहे हैं हम, कि अमल करके जाएंगे तो वहाँ पे आराम मिलेगा हमको। दुनिया में तकलीफ उठा लें, लेकिन जन्नत में इंशाअल्लाह ताला हमें तकलीफ नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा कि फअम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, बेशक जिनके दिलों में कजी है, फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअ फितनता, फितने की तलाश की करने की वजह से वो मुतशाबिह आयत की इत्तिबा करते हैं। वब्तिगाअ तावील, और उसकी तावील भी करते हैं, उसकी तावील भी करते हैं। तावील समझते हैं किसको बोलते हैं? उसकी मुराद, कुरान की मुराद को कौन समझेगा? जो कुरान का आलिम होगा, कारी होगा। ये मैं नहीं कहता कि कुरान कोई समझ नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। मेरी बात समझिए, हम जो आपको कुरान का दर्द दे रहे, तो हम भी तो किसी सीखने के लिए सीखेगा, पैदा होती है हम जानते हैं, तो हमको किसी ने सिखाया है, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप दूसरों को सिखाइए। सीखना सबके लिए है, कुरान सबके लिए, सब कोई सीख सकता है, लेकिन तरीका सीखने का बयान किया जा रहा है कि कुरान की ताबीर कौन करेगा? वो जो कुरान का जानकार होगा। वो मुतशाबिह आयत की इत्तिबा इसलिए करते वक्त तिगा तावील, ताकि उसकी मुराद को भी वो बयान करे। अब कुरान में एक जगह है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। आदमी पूछेगा मुसलमान, देखो कुरान में नमाज के करीब मत जाओ है, कुरान में आयत है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के नजदीक तक ना जाओ, नमाज मत पढ़ो। मस्जिद के करीब मत जाओ मतलब नमाज तो मस्जिद में ना होगा। तो बाद लोग इतनी आयत का हिस्से को बयान कर देते हैं, आगे में अंतुम सुकारा, नशे की हालत में मत, ये कोई बयान नहीं करेगा। तावील इसको कहते हैं कि एक चीज को छुपा दो, इसको निकाल दो। देखो कुरान में जाकर देखो, पहले इतना पारा है, इतना नंबर आयत है, देखो अगर लिखा है कि नहीं लिखा होगा तुम बताना हमको। ला तक़रबुस सलाह, भेजने वाला को कुरान का इल्म नहीं होगा, वो इतना देख कर चला है। अगर वो अंतुम सुकारा देख भी लेगा तो इसको माना कैसे पता चलेगा कि माना क्या होगा? तो कुरान में तावील किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बारहा कोशिश की गई कुरान के अंदर इनहराफ तहरीफ करने की, ताबीर करने की, आज तक कोशिश जारी है। लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस कुरान के नाज़िल करने वाले हैं और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुरान में क्या कहा गया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कुरान को जिक्र भी कहा गया है। कुरान जिक्र भी है, कुरान फुरकान भी है, कुरान किताब भी है, कई माना कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह का वादा है कि कुरान को जब हमने नाजिल किया है तो क़यामत की सुबह तक कुरान अपनी असल शक्ल में मौजूद रहेगा। कोई कितनी कोशिश कर ले, और यही वजह है कि जो मदारिस इस्लामिया के नुमाइंदे आपके यहाँ आते हैं ज़कात के लिए, तो आप उनको बढ़ चढ़ कर देखिए कि उन्हीं की कोशिश की वजह से वो पास पैदा हुआ है, जिसकी वजह से कुरान आज महफूज है। अगर पास खत्म हो जाएंगे, याद करने वाले कुरान को याद किए हुए हैं, तो नुस्खा तो कोई भी जला देगा, तो फिर लिखाएगा कैसे? आप समझ आएंगे? ये मदारिस इस्लामिया जहाँ पास तैयार हुए हैं, ये सिर्फ हाफिज नहीं है, बल्कि ये कुरान के सिलसिले को कायम किए हैं। एक ज़माने से वहाँ पर ये पास का सिलसिला चला रहा है। अल्लाह ताला ऐसे मदरसे को क़यामत कायम करे। आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि
वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और उसकी तावील को कोई नहीं जानता मगर अल्लाह के। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, कुरान के माना और मुराद को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जो लोग चाहते हैं कि हम अपना मुराद उसे निकाल लें, जो लोग सोचते हैं कि हम मुराद उसे निकाल लें, वो गलत सोच रहे हैं। उसकी असल मुराद अल्लाह जानता है। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में पुख्ता होते हैं उनका बयान हो रहा है। एक तबके का बयान हुआ जो मुतशाबिह आयत की इत्तिबा करते हैं फितना को बर्पा करने के लिए और उल्टा पुल्टा मुराद लेने के लिए। तो उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि कुरान की मुराद और ताबीर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मतलब अल्लाह जानता है, और अल्लाह ने जो जानशीन पैदा किया अंबिया के उलमा इकराम, उनको अल्लाह ने इल्म पहुंचा दिया और उनके जरिए से और आगे पहुंच रहा है। वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में पुख्ता होते हैं, जो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, मुताला करते हैं, यक़ूलूना आमन्ना बिही, जब इस तरह की आयत को देखते हैं कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। यक़ूलूना आमन्ना बिही, कहते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह पर है। कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, तमाम चीज कुरान में वो हमारे रब की तरफ से है, सब अल्लाह ने बयान किया है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक्लमंद। बेवकूफ नसीहत नहीं पा सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की नसीहत हमारी पर हो तो हमें अक्लमंद होना होगा, समझदार होना होगा। मजीद आगे अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 8 के अंदर। ये एक दुआ है, बड़ी बेहतरीन दुआ है, आप लोग बल्कि इसको याद करें और सजदे में जब सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला पढ़ लीजिए तो इसको पढ़िए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमें हिदायत मिलने के बाद हमारे दिल को टेढ़ा मत करो। यानी ये ना सोचिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं तो हमारा ईमान एक जैसा रहेगा। ईमान घटता बढ़ता भी, ईमान घटता बढ़ता भी है। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हिदायत मिलने के बाद हमारे दिल को नरम रख, सीधा रख, अपना ताबे बना के रख, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे बना के रख। जो हुक्म अल्लाह उसके रसूल के उन पर करे, अमल करे, जो हुक्म नहीं है इनकार उस पर अमल ना करे। तो ऐ हमारे रब हमें हिदायत मिलने के बाद हमारे दिल को टेढ़ा ना कर, वहब लना मिन लदुनका रहमतन, और अपनी तरफ से रहमत हमें पहुंचा दे। हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, मोहताज हैं। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू अता करने वाला है। उसके बाद एक और दुआ है आयत नंबर 9 के अंदर। रब्बना इन्नका जामिउन नास, ऐ हमारे रब बेशक तू ही लोगों को जमा करने वाला है। यौमिन, उस दिन, ला रैब फीह, जिस दिन कोई शक नहीं, यानी मैदान महशर में। महशर के बारे में भी अल्लाह ने बयान कर दिया। अब तू कहे करे कौन देखा है महशर को, यह है मुतशाबिह आया। किसने देखा महशर को? अभी तो बहस शुरू। अच्छा, महशर जब कायम होगा तो घास की जमीन होगी, किसी छत पर कायम होगा, या कोई मैदान होगा, या कुर्सी लगी होगी, सब लोग बैठे होंगे, अल्लाह ताला जो बैठे को कैसी कुर्सी होगी, ये सब मुतशाबिह आयात है, इसको नहीं जाना है। अल्लाह ने कहा कि ऐ हमारे रब बेशक तू लोगों को जमा करने वाला है उस दिन जिस दिन के जमा करने में कोई शक नहीं। तो हम ये महकम आयत को लेते हुए हमको अकीदा हो जाए कि हाँ उस दिन कायम होगी। अब कैसा होगा देखा जाएगा उस दिन जाने के बाद, लेकिन ये कि कायम तो होगी, है ना। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करता। आखिरी आयत में अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 10 के अंदर, इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। यहाँ भी वही माना है, बेशक जो लोग काफिर है नहीं, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। कुफ्र का माना अल्लाह की आयत का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार कर दे, काफिर हो जाए, या अल्लाह के नबी का इनकार कर दे, मुर्तद हो जाए। हर तरह का कुफ्र। अगर मुसलमान है तो कुरान की चंद आयत को मान रहे, चंद आयत को नहीं मान रहे। मुसलमान है तो कुछ अहकाम पर अमल कर रहे, कुछ अहकाम पर अमल ही नहीं कर रहे। तो जिस तरह से भी हम इनकार कर दे, अल्लाह ने कहा लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से कुछ भी बेनियाज नहीं कर पाएगा, ना उनके माल ना उनकी औलाद। ऐसे लोगों को अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सके, कुछ भी शैया, कुछ भी नहीं बचा पाएगा, ना उनकी औलाद बचा पाएगी और ना उनके माल बचा पाएगा, यानी माल दौलत। और इसी से ज्यादा हम लोग बहुत करते हैं, औलाद से और माल दौलत से। हमें लगता है कि हमें यही बचाएगा। अल्लाह ने इस आयत में इनकार कर दिया कि जो दौलत, जो शोहरत, जो रुतबा, जो मकाम, जो मर्तबा तुम्हारे पास है, और जो औलादें तुम्हारे पास जिन पर तुम फख्र कर रहे हो, मेरे 4 बेटे हैं, 5 बेटे, 10 बेटे हैं, ये तुमको अल्लाह के अजाब से कुछ नहीं फायदा पहुंचा, बचा ही नहीं पाएंगे। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंदाज कुरान मजीद के अंदर बयान करने का कि जिस पर हम फख्र कर रहे हैं, जिस पर हमारा गुरूर है, तकब्बुर है, घमंड है, ये दौलत, ये शोहरत हमारी इज्जत है, ये औलाद हमारी इज्जत है। अल्लाह ने कहा दोनों तुमको देखेंगे खड़ा होकर क़यामत के दिन, ना औलादे के कदम बढ़ेगा ना दौलत आई बचाने।
दौलत कब आपको बचाएगी? उस दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दीजिए, उस दौलत बचाएगी। उस औलाद को अल्लाह के रास्ते पर कामयाब कर दीजिए, दीनदार बना दीजिए, तो आपके मरने के बाद औलाद की दुआ से अल्लाह ताला आपको आगे तरक्की देता रहेगा। मरने के बाद की बात हो रही है, सोचिए। लेकिन अगर हमारी औलाद दीनदार नहीं रही तो छोड़ भूल ही जाएगा अपने इंतकाल के बाद कोई आपको दुआ करेगा कि अल्लाह हमारे अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनको मफरत कर दे। अगर वो दीनदार नहीं है, कितना भी दुआ करे अल्लाह कबूल नहीं करे। दीनदार शर्त, नेक और साले औलाद और माल दौलत जो अल्लाह ने दिया है, ये बेहतरीन जरिया है अल्लाह को राजी करने का। अभी रमजान में हमने ज़कात सदका तकसीम किए, इस रूटीन को अब साल भर कायम रखें। रमजान तो प्रैक्टिस पर एक महीना, असल खेल तो 1 तारीख से शुरू होगा, शव्वाल से। अभी तो शैतान कैद है, कोई आपको बहकाने वाला भी तो नहीं है, पाँव खींचेगा आपको आगे बड़े पाँव खींचे। तो अभी मैदान पूरा फाका है, क्लियर है। मजा तब आएगा मैच जब दोनों तरफ की टीम बराबर की, अजान हो और शैतान खींचे, नमाज पर नहीं आने देंगे। अजान हो, शैतान का इधर बाजार भी करते हैं, अजान हो जब चाय वगैरह पी लेते हैं, बात करते हैं, इसके बाद उसमें देखना है अल्लाह ताला देखेगा कि यह बंदा शैतान की परवी करता है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमान की परवी। आगे अल्लाह ने बयान किया उलाइका का हम वक़ूदुन नार, और यही लोग जहन्नम के ईंधन है। कौन लोग? जो लोग अपने माल को, अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाते, माल को दीन के रास्ते में खर्च नहीं करते, एक तो ये चीज़ उनको फायदा नहीं पहुंचाएगी, और ये लोग जहन्नम के ईंधन, आग भड़काई जाएगी हमारी बॉडी से, अल्लाह ताला सबको जहन्नम से महफूज रखे। ईंधन समझते हैं ना, ईंधन ईंधन देखते हैं ना, जब ईंधन डालते हैं ईंधन कैसे भागती है, भड़क जाती है, तेज चलने लगती है, तो वो सीधे हमसे और पत्थर से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को भड़काएगा। तो अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे और जन्नत का मुस्तहिक बनाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सवालात इन आयत के ताल्लुक से जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, आप लोग पूछ सकते हैं। आउट ऑफ टॉपिक सवाल है कि अगर कोई सूद का काम करता है तो उससे बिना सूद के कर्ज ले सकते हैं। सवाल ये है कि कोई अगर सूद का काम कर रहा है, यानी कारोबार सूद का है, और एक आदमी को कर्ज लेना है, उसी से लेना है जो सूद का काम कर रहा है, लेकिन वो सूद पर कर्ज नहीं लेगा, वो जिसको दे रहा है, जिसको दे रहा है, तो क्या उससे हम बगैर सूद पर कर्ज ले सकते हैं? तो इसमें दो मसला है। सबसे पहला मसला ये है कि हम ले सकते हैं, अगर वो सूद नहीं लेगा तो हम ले सकते हैं, लेकिन दूसरा मसला है वो देगा बगैर सूद के, उसका काम वही है। सबसे बड़ा मतलब यही है कि सूद ही का कारोबार कर रहा है, किसी को दे रहा है और उससे इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो दे देता है, समझ लीजिए ठीक है, आपसे हम सूद नहीं लेंगे, तो आप ले सकते हैं, आप उसके कर्ज ले सकते हैं। लेकिन वो कह रहे कि नहीं मेरा काम ही नहीं है, कम इंटरेस्ट लेकर आपसे कैसे नहीं लेंगे, सबसे लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। उसमें क्या है ना, उसमें क्या है बता देती है कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने हमेशा गरीबों से पूछा। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कभी भी अमीरों से नहीं पूछा कि आप माल कहाँ से लाते। अगर पूछा अल्लाह के नबी ने तो गरीबों से पूछा। आपको मालूम है कि हम महीने का 2000 कमाते हैं, आपको मालूम है, और आप लोग यहाँ मस्जिद कायम करेंगे और हम 50,000 देंगे, तो पूछेगा नहीं हमसे, हम सब 50,000 देंगे। लेकिन हमको मालूम है कि आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं और हमारे मस्जिद लड़ाई हो रही है, आप भी देते थे, कभी नहीं पूछेगा। लॉजिक समझ आ रही है? उसका एक ही कारोबार थोड़ी है, सूद का बहुत सा कारोबार, ट्रक चल रहा है, ये चल रहा है, बहुत से कारोबार आते हैं जो सूद का कारोबार करते हैं। मतलब अगर नहीं लेगा तो दे सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल। सूद वाला अगर मस्जिद में पैसा दे रहा 2.5 ले सकते हैं। लॉजिक याद रखिएगा, अमीरों से अल्लाह के नबी ने कभी नहीं पूछा कि आप पैसा कहाँ से लाए। अगर अल्लाह के नबी ने पूछा है तो गरीबों से पूछा है, आपके पास तो है नहीं, कहाँ से लाए, चोरी तो नहीं किया आप, अगर मस्जिद में देते हो तो सूद का मान लीजिए पैसा है, उसके एक ही कारोबार है, यही तो बताने का मकसद है कि उसका एक ही कारोबार है, सूदी का काम करता है। जो सूद के कारोबार करते हैं उनके न जाने कई कारोबार है, कार वगैरह जो है शादी ब्याह में चल रही है, उसका पैसा आ रहा है, तो हलाल है, तिजारत है। हाँ, अगर आप कंफर्म है कि एक ही कारोबार है सूद और दूसरा नहीं है, तो ये आपका दायित्व होगा, अल्लाह आपसे पूछेगा कि हाँ कंफर्म है, तो नहीं कंफर्म नहीं है तो ले सकते, कंफर्म है तो मत लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं सूद का कारोबार है, कंफर्म नहीं है। सवाल ऑनलाइन में सवाल, अगर लड़की वाहन अगर नहीं लेना चाहे तो भाई गरीब है, छोड़ सकती है। देखिए मिराज के ताल्लुक से जो भी बात गुजरी है, तो बात तो कि मिराज की आयत आए नहीं है, वो तो मैंने एक कनेक्शन जोड़ दिया,
किसी ने सवाल किया कि रोजा जो टूट जाता है, तो मौलवी साहब ने बड़ी हिकमत का मुजाहरा किया कि सिर्फ इसी चीज पर आदत होगी, खा लेंगे तो टूट जाएगा, पी लेंगे तो टूट जाएगा, बिजली हम बिक्री कर लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, जो बहन का हक खा रहे हैं उनका रोजा नहीं टूटेगा। ये मैंने एक कनेक्शन कड़ी जोड़ दिया, उसकी आयत नहीं आई, लेकिन उसके मुतालिक एक सवाल आया है कि मान लीजिए कि बहन को भाई हिस्सा दे रहा है, ठीक है, बहन ना ले तो ऐसी सूरत में क्या मसला है? तो ये तो उनसे लिखा पढ़ी करवा लें। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम मना लेंगे नहीं लेने के लिए, ये नहीं होनी चाहिए। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि उसका हक है, उसको देना है। हो सकता है कि बहन के बाल बच्चे बोलते कि नहीं हम ही नहीं, आपको नहीं देना बताइए, हम लोग दे दीजिए। माँ के पैसे में, माँ की मिल्कियत में औलाद के हक है कि नहीं है? तो आपको सब कुछ देख लेना होगा। अगर बहन इनकार कर रही है तो आप लिखा पढ़ी करवा, और विदाउट एनी प्रेशर, समझिए ना, बगैर प्रेशर के। बहन अपनी खुशी से कह दे कि हमें ससुराल में बहुत है, या नहीं किए तो हमको जरूरत नहीं है, आप लोग रखें। के बाद बहन इसलिए भी नहीं लेती है कि उनको इनडायरेक्टली धमकी दी जाता है कि फिर कोई कनेक्शन मत रखना, यहाँ उठना बैठना है, यहाँ उठना बैठना आपका नहीं होगा, और आएंगे तो नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। ये इनडायरेक्टली भी किसी से बुलवा दिया जाता है, तो देखती है कि भाई मेरा नैहर है, मेरा मैका है, अब ले लेंगे तो जो भी बाप माँ है नहीं भाई बन जाइए, भी ना पूछे तो फिर मेरा मैका ही खत्म हो जाए। तो बगैर कोई दबाव, बगैर कोई प्रेशर के अपनी रजामंदी से बहन कह दे, अपनी खुशी से कह दे कि यार नहीं मुझे नहीं लेना है। उसमें भाई को एक बात याद रखना है कि भाई पूछ करता रहे कि नहीं आप लीजिए, ये नहीं कि एक मरतब पूछा नहीं लेकिन ले लीजिए नहीं। हम किसी से कर्ज ले सकते हैं, ये बोलते हैं कि हम 1 साल या 2 साल के बाद देंगे, लेकिन वो रकम थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन वो फिक्स टाइम लिए हैं, 1 लाख जैसे टाइम दिया उसको 1 लाख देंगे, उसका तो इसका ज़्यादा लॉस होगा, आपको 1 दे देंगे, 1 देंगे, लेकिन वो फिक्स ही रहेगा कि हम 1 साल के बाद दें, 2 साल के बाद दें या 3 साल के बाद दें, लेकिन वो बोल कर देंगे कि आपको हम 1,10,000 देंगे 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद दें। देखिए आपका सवाल है कि किसी का कर्ज ले रहे हैं तो बड़ी रकम है और उसका मियाद मुकर्रर है कि आपको हम उतनी तारीख को देंगे, 1 साल के बाद, चाहे जो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, उतने साल बाद आपको हम लौटाएंगे। लेकिन जो पैसा हमको दीजिएगा हम उसमें से 10,000, 15,000, 5,000 फिक्स रहेगा, उसको जो बोल दिए समझ रहे हैं। जैसे आप 10,000 फिक्स किए हैं, कोई 5,000 फिक्स कर देंगे, हम आपको कितना देंगे 5,000 देंगे, या कोई 15,000 फिक्स कर देंगे, कितना दे रहे हैं उसमें हम 15,000 ऐड कर देंगे। तो क्या इसमें हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए कर्ज की पूरी लंबी चौड़ी अभी आयत गुजरी है करीब करीब 1-2 हफ्ता पहले, कर्ज कैसे लेन देन करना है, तो उसमें उसको आप बताइएगा कि हम इतना वक्त में देंगे और इतना बढ़ा कर देंगे, तो ये बता दीजिएगा कि वो सूद नहीं देंगे, आपकी तारीफे कल के लिए देंगे, अपनी खुशी से आपको देंगे, ताकि उसके देह में सूद रवाना ना है। ये भी आप ऐड कर दीजिए, तो आप उसको बढ़ा कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन सवाल आया था, मेरा सवाल है कि जैसा आपने बताया कि लड़की का भी हक है माँ बाप के जमीन और हो गया था। अच्छा बोलिए, वही सवाल बोलिए। है अपने मर्जी से छोड़ने वाले, इसको शॉर्ट में कर दिया था, इसको हम शॉर्ट में छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, पता अगले में आपका सवाल क्या है? हो गया मेरा सवाल आ पिछला हफ्ता हो गया, ठीक है। एक मेरा भी है। अगर औरतें एतकाफ में बैठती हैं मस्जिद में और एतकाफ के दौरान हैज आ जाए तो उस वक्त क्या करेंगे? सवाल ये कि औरत के बारे में, एतकाफ के बारे में पिछले दर्स में गुजरा कि मस्जिद के अलावा कहीं एतकाफ नहीं, ना मर्द का ना औरत का एतकाफ। तो अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, सूरह बकरा आयत नंबर 183 है कि मस्जिद के अंदर एतकाफ करना है। अब औरतों के खुसूसी मसाइल है। सवाल ये है कि मस्जिद में औरतों के लिए बापर्दा इंतजाम है, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो, उनके लिए पूरा सेपरेट है। और एक औरत एतकाफ में बैठी है और उसके बाद एतकाफ में बैठने के बाद वो हायजा हो गई, हैज आ गया, तो उनका एतकाफ वहीं पे टूट गया, तो वही अभी सरबान के घर चली गई। अल्लाह उनको सवाब दे देंगे। ठीक है, ये भी सवाल होगा कि तब मान लीजिए 10 दिन का एतकाफ है, 3 दिन में ऐसा हो गया, अल्लाह उनको सवाब दे देंगे। हाँ ये मस्जिद में एहतिकाफ मर्द है, 3 दिन का भी एहतिकाफ कोई कुछ लोग करते हैं, रमजान 3 दिन या 3 दिन होता है, ऐसा कुछ है या 10 दिन भी करना है या 3 दिन भी करने से? आपका सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे, 10 दिन, बस बाद लोग 3 दिन या 1 दिन का भी एतकाफ करते थे। ये कहाँ तक सही है 3 दिन का? असल में ये सही है। इसका एक रवायत आती है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या उसको बोलते हैं, नजर मानी जमाने जाहिलियत में, जब अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, उमर फारूक,
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जमाने जाहिली में नजर मानी थी कि मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं इत्तिकाफ करूंगा एक दिन का। बाद में मुसलमान हो गए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास इस बात का तज़किरा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जमाने जाहिलियत में नजर मानी थी, इस्लाम उस वक्त मुझे नहीं पहुंचा था, मैं मुसलमान नहीं हुआ था, कि मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं एक दिन का इत्तिकाफ करूंगा, तो क्या मैं कर लूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो तुम्हारी नजर पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूरी हो गई, जाओ कर लो। समझ गए? तो ये रिवायत मिलती है जिसमें दलील भी बन जाती है कि हाँ एक दिन का इत्तिकाफ हम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हाँ, इत्तिकाफ के बारे में तो बताया था कि अगर नजर मानी हुए कि हमारा फला काम हो जाएगा, हम इत्तिकाफ करेंगे तो वाजिब है, फर्ज है, वरना ये सुन्नत मुअक्कदा है। मोहल्ले से 2-3 लोग भी बैठ जाएंगे तो सबकी तरफ से काफी हो जाएगा। और अगर एक भी आदमी नहीं बैठेगा सब मोहल्ला गुनहगार है, तो किसी को तो बैठने नहीं होगा। रमजान खत्म होने वाले 11 महीने की कुछ नसीहत है। देखिए एक सवाल ये भी है और बहुत बड़ा बेहतरीन सवाल है। सही बात है कि अब रमजान खत्म होने वाला है, अब तक जो भी हमने टूटी फूटी इबादतें की अल्लाह जानता है, जैसे भी जो भी जिसको ताकत हो, तरावी का एहतमाम हो, सहरी का खाना हो, इफ्तार का करना हो, दिन भर की भूख प्यास की शिद्दत हो, जिक्र अज़कार हो, कुरान की तिलावत हो, दर्स व तदरीस में बैठना हो, जो भी हमने इबादतें की अल्लाह से तो हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह ही कबूल करने वाला है। अब चूँकि 2 या 3 दिन रमजान के और बाकी अय्याम बचे हैं, सवाल ये है कि रमजान खत्म होने वाला है तो अब रमजान के बाद हमको क्या करना है, क्या करें? सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैंने खुतबे या सवाल के दौरान मैंने कहा कि मैं हर जगह यही बात कहता हूँ कि रमजान ये प्रैक्टिस का विषय है। अल्लाह ताला 1 महीना हमें प्रैक्टिस करने के लिए देता है, कोई रुकावट आपको नहीं आएगी। खासकर रुकावट शर्कस, जिन्नात और शैतान की तरफ से आता है, वो तो कैद है, वो कब निकलेंगे जब उनके जाने चलाएगा तब। और हम 1 महीना जिस तरीके से अल्लाह से डरते हैं, नमाजों की फिक्र करते हैं, रोज़े की फिक्र करते हैं, अल्लाह से डरने का तकवा ये भी है कि चाहे तो खा सकते हैं, कितनी गर्मी करीब मुझसे 4-5 दिन पानी पी सकते हैं कमरे में बंद करके, नाइट हो जाके, कोई देखने वाला नहीं कि हमने पिया नहीं पिया, इसी को तकवा, कोई नहीं तो अल्लाह देख रहा है। इसी चीज़ को रमज़ान के बाद कायम रखना, जो एक्टिविटी जो जितने मुतहर्रिक अभी हम रमज़ान के महीने में नजर आए, हम उसको रमज़ान के बाद जारी रखें, एक चीज़। दूसरी चीज़, जारी के साथ साथ अपना मुहासबा करते रहे। मुहासबा अकाउंटेबिलिटी कहते हैं ना इंग्लिश में, अपना हिसाब करते रहे। मुहासबा जरूर करें कि अभी जो महीना गुजरा तो ना चाहते कि हमको सहरी में उठना पड़ता था, हालांकि आँख बसते बसते उठते थे, बरस करके खाती रहती, दिल तो घबरा नहीं करता था लेकिन उठते जरूर थे। तो इसी तरीके से कब सहरी का मामला नहीं है, अब हम जो है फजर के लिए। इसी तरीके से रमज़ान की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए रमज़ान के बाद नवाफिल रोज़ों का एहतमाम आप कसरत से करें। ये मेरी ज़ाती राय आप लोगों की, क्योंकि हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक दिन के रोजे की वजह से 70,000 की मुसाफत जहन्नम से दूर कर देता है अल्लाह ताला हमारे चेहरे में। एक दिन अगर रोज़ा रखेंगे, नफिल रोजा या फर्ज रोजा, अल्लाह ताला हमारे बदन, हमारे चेहरे को जहन्नम की आग से 70,000 साल की मुसाफत को दूर करेंगे। यानी यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, 70,000 साल तक चलेंगे तो जहन्नम है। तो एक रोजे की वजह से। तो रमजान का रोजा खत्म होने के बाद शव्वाल के 6 रोजे आ जाते हैं। इस महीने में ईद के बाद, ईद एक ही दिन का होता है, हमारे यहाँ मशहूर 3 दिन ईद होता है। ईद कितने दिन होता है? एक दिन। पहला ही दिन जो है ईद है, उसके बाद खत्म। अब उसके बाद जिसको जैसी सहूलत हो, शव्वाल के 6 रोजे रखें तो पूरे साल का सवाब हो जाएगा। एक साल का रोजा रखने का सवाब होगा। इधर 30 दिन है, इसको 6 से जरा कर दिए, क्या इनका हिसाब में 3 हो रहा है ना, 360 जो होता है, और 6 36 36 कितना जरूर दीजिएगा, 360 10 से, तो वही हिसाब है 360 का रोजा का हमारा हो जाएगा 1 साल का। तो आप खुद भी और घर के जो औरतें उनको भी, या जो ऑनलाइन में खवातीन हमारी बहनें सुन रही हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट और दरखास्त है कि इस सिलसिले को खत्म ना होने दें। रमजान के रोजे से निकले, शव्वाल के 6 रोजे में कूद जाए, रखना है इंशाल्लाह। हो सकता है कि थोड़ा आराम करने का दिन चाहेगा, तो उसका भी एक तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत थी, हर महीने आप 3 दिन रोजा रखते थे, अय्याम बीस के रोजे कहते हैं उसको, ये आपकी आदत थी। 13, 14, 15 उर्दू की तारीख, जो अरबी तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, उसको कहते हैं अय्याम बीस के रोजे। आप पूरी जिंदगी में हर महीना 3 दिन रोजा रखते थे, हर महीने
और साथ ही साथ हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते हैं, जुमेरात और सोमवार को। तो ये 6 रोजा अगर आपको रखना है तो अयाम बीस के दिन 3 पूरा कर लीजिए, तो अयाम बीस का भी सवाब मिल गया आपको। और ये आपको शवाल के 6 रोजों का, या 6 रोजा रखना है तो हफ्ते में 2 दिन रखिए, सोमवार जुमेरात को। सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के रसूल से पूछा गया क्यों रोजा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन बंदे के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। 3 दिन पर हमारा पीडीएफ बन के जाता है अल्लाह के पास, 3 दिन में क्या किया हमने। तो मैं जब अमाल अल्लाह के पास जाए तो मैं चाहता हूँ कि रोजे से रखूँ। तो ये 6 रोजा इस रख सकते हैं, 3 हफ्ता में आपका काम हो जाएगा। ईद के बाद फिर शव्वाल के बाद जब खत्म हो जाएगा, ज़िलक़ादा का महीना आ जाएगा, तो फिर आप चाहे तो हर सोमवार और जुमेरात को रखें, या अय्याम बीस के 3 रोजे रखें। इस सिलसिले को खत्म ना होने से, क्योंकि इसका सवाब कितना है कि 70,000 की मसाफत, 1 रोजा पर 70,000, तो 2 रोजा पर 1,40,000, 3 रोजा पर 2,10,000, 4 रोजा पर 2,80,000। इस तरीके से सोचे चली जाएगी, 2,80,000 साल भी चलेगा तो जहन्नम के पास पहुंचेगा। तो रमजान के बाद करने वाले अमाल यही है। और सबसे अहम इन तमाम चीजों के ऊपर सदकात और खैरात को बंद रखना। ये नहीं कि रमजान में हमने कर लिया तो हम उसके बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुर्बत 1 महीने से नहीं खत्म होती। ये बात याद रखें, हमारे भाई हमारी तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छा खाना अच्छा पहनना चाहते हैं। आप लोग माशाल्लाह नौजवान हैं, आप लोग तंजीम बनाए, बैतुल माल बनाए, बैतुल माल बनाइए। आपने सब्जी खरीदने गए 5 रुपये लेकर, 436 रुपया हुआ, आपके पास बच गया 64 रुपया, बैतुल माल डाल दीजिए। बूंद बूंद कतरा कतरा तैयार होता है। बैतुल माल का वजूद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बैतुल माल आजकल हमारे नहीं है, आप लोग बनाइए, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं माशाल्लाह। बात लोग कमाते हैं, अल्लाह से दुआ है, जो नहीं कमाते अल्लाह उनको जल्द से जल्द हलाल और अच्छी रोजी से जोड़े। तो आप इसको कायम कीजिए, बैतुल माल को अपने में आपस में और बड़ी ईमानदारी से चलाइए। आपके जरिए से बहुत से लोगों को भला होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह के सेम टाइम का नेक्स्ट टाइम जब भी होगा इसमें इंशाल्लाह ताला, चूंकि रमजान के अंदर जो 4 हफ्ते संडे आए, अल्लाह के फजल और तौफीक से हम तमाम लोगों ने, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने वक्त दिया। ऑनलाइन जो लोग हैं उनकी भी बहुत इसमें कुर्बानी है कि उन लोगों ने भी वक्त निकाला, खासकर रमजान के महीने में। इंशाल्लाह ताला इसके बाद आम दिन हम चले जाएंगे, रमजान खत्म हो जाएगा तो आम दिनों में जैसे मगरिब के बाद होता था, एक टाइम आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मगरिब काफी ताखिर से हो रही है। तो उम्मीद है मेरे हिसाब से 7 बजे, 7 या 7:15 बजे से अगले हफ्ता जो है अपने मामूल पे, अपने रूटीन पर, जो पुराना रूटीन हम लोगों का है, दर्द उसी रूटीन पर इंशाल्लाह ताला शुरू किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा लें। और अभी जो आने वाला है ईद उल फित्र, ईद, अल्लाह ताला इस ईद में हम तमाम की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर दे, हर आदमी खुशी राजी अपने ईद को मनाए। और जो हमारे भाई गरीब गुरबा हैं, हमसे अल्लाह वो काम करवा दे कि उनके यहाँ भी ईद बड़ी अच्छी अंदाज में हो जाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।